ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਟਾਈਮ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮੇ ਆਏ। ਤੇ ਨਾਬੂ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਏ? ਉਹ ਹੈਲੋ ਰਾਈਸ ਕਹਿ ਕੇ ਚੌਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਈਸ ਧਰਤੇ ਉਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਰਨੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ। ਤੇ मैं चाह वाले को गया सी, हासे वाली गल दसा, मैं च पा दे जिन्ने कप पैंदे आ। कहता इतनी चाहे, मैं कहा बई पंजाबी है, मैं कहा तड़के तो पूरा जग भर के चाह दा पींदे आ, तेरे भोड़ा भोरा कप्पियां ही ना कुछ नहीं होना साडा। इस करके आ कप भरा लिया 80 रुपये का भरिया पतंदर ने 20 भी नहीं मोड़े, कहता बिस्कुट लै जाओ 100 का ला के जेब च मारिया। चलो कोई नहीं, चाह पी के कैम हो के आप जावांगे हुण फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आप सारा दिन स्पेंड करांगे। उस तो बाद आगरा होंदे होए आप मथुरा स्टे करांगे। मथुरा तो फिर अर्ली मॉर्निंग 28 सितंबर की अपनी पंजाब वापसी होगी। ठीक है जी, बाकी रास्ते च तुहानूं अपडेट करते रहांगे सारा कुछ। आप पहुँच गए जी फतेहपुर सीकरी ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਲਕਮ ਗੇਟ ਹੈ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ। ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋਧਾਬਾਈ ਪੈਲੇਸ ਆ, ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 30 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਪਰਸਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਗੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ। ਡਨ, ਆ ਜਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਵਿੰਡੋ ਇੱਧਰ ਹੈ, CNG ਬੱਸਿਸ, ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਹਨਾ। ਚਮਕਾਂਡੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਸ ਵੱਲ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਬੱਸ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 30 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। CNG ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੂਗੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ। 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘੁੰਮ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੱਸ ਤੇ ਹੀ। ਬੱਸ ਜਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਵੜਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, UP ਸਟੇਟ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ। AC ਨੋਨ AC ਰੂਮਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ CNG ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜੀ, 30 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ 30 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਪਰ ਪਰਸਨ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੂਮ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ ਡੀਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਮ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ब्रेकफास्ट एक्सक्लूड के इंक्लूड है? अच्छा ओके 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 राइट। हाँ जी हाँ जी। ਆਪਾਂ ਕਮਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੋਹਣੇ ਕਮਰੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਤੇ
थैंक यू सो मच, थैंक यू। लो जी अपनी बस वाला भी डिक्की जाता आपां नूं, आपां ये देख लिया ते वधिया गुड आ। सामने टिकट काउंटर है जी, आप एंट्री कर गए इत्थे। हुण गाइड साहब दसणगे आपां नूं की कुछ है इत्थे देखने वाला की चीज़ है। देखिए जैसे आपको बताया फतेहपुर और सीकरी तो डिफरेंट पार्ट है। तो दिस इज द सीकरी एंड नेक्स्ट पार्ट इज फतेहपुर। सीकरी लाइक अ रेजिडेंशियल एरिया ऑफ द एम्परर अकबर, लाइक अ रॉयल पैलेस, बादशाह अकबर का रहने वाला किला। और फतेहपुर जो है वो एक होली प्लेस है, बिकॉज वहाँ अकबर के गुरु की दरगाह है, रॉयल मॉस्क है, शाही जामा मस्जिद, जो कि दोनों वर्शिप प्लेसेज है। तो वो वर्शिप प्लेस को, होली प्लेस को अलग रखा गया और ये सीकरी जो रेजिडेंशियल एरिया था इसको अलग रखा गया। तो देखिए फतेहपुर सीकरी जो स्टार्ट होता है वो 1527 से। फतेहपुर जो नाम है वो दिया था सबसे पहले जो मुगल बादशाह हिंदुस्तान आए बाबर ने, जब उन्होंने यहाँ खानवा का जो युद्ध था वो फतेह किया महाराणा संग्राम सिंह के साथ में। फतेह मीन्स विक्ट्री इन उर्दू लैंग्वेज। तो महाराणा संग्राम सिंह के साथ में इस युद्ध को फतेह किया, तो इस जगह को नाम दिया फतेहपुर। सीकरी पहले से सिकरवार राजपूत लोगों का गांव हुआ करता था, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया फतेहपुर सीकरी। लेकिन बाबर कभी यहाँ नहीं रहे, वो यहाँ से आगरा चले गए। ठीक है। बाबर के करीब 40 साल बाद उनके जो ग्रैंडसन थे अकबर, बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं के बेटे अकबर यहाँ आए थे अपना बेटा मांगने के लिए, मतलब प्रे करने के लिए। क्योंकि अकबर जो है बादशाह थे, 3 रानियां थीं, लेकिन उनके पास में कोई बेटा नहीं था। ठीक है। अकबर काफी जगह गए, मन्नतें कही, लेकिन कहीं से उन्हें बेटा नहीं मिला। लास्ट में महारानी जोधाबाई और अकबर आगरा फोर्ट से पैदल चल करके, बताया जाता है, यहाँ आए शेख सलीम चिश्ती साहब के पास में। शेख सलीम चिश्ती जो कि एक सूफी सेंट थे, वो जिंदा थे तब, उस टाइम जिंदा थे। ठीक है। तो शेख सलीम चिश्ती साहब के आशीर्वाद से अकबर को बेटा मिला, जिसका उन्हीं के नाम पर रखा गया सलीम। बाद में जहांगीर के नाम से फेमस हुआ। जब अकबर को यहाँ से बेटा मिला तो उसने यहीं रहने का डिसाइड किया। ये फतेहपुर और सीकरी दोनों किले बनाए। 1570 से 1586 तक यहाँ रहे। 16 साल ये मुगल एम्पायर की राजधानी रही फतेहपुर सीकरी। लेकिन यहाँ पानी की कमी थी। अच्छा। जो ग्राउंड वाटर था वो सॉल्टी था, आज भी सॉल्टी है। तो इसलिए यहाँ से छोड़ करके लाहौर चले गए। डेप्थ कितनी है वाटर की यहाँ? डेप्थ यहाँ जो वाटर तो अपना 100 फीट के करीब है, लेकिन है जो है साल्टी है। ओके। साल्टी वाटर है यहाँ, जो है नॉर्मल वाटर नहीं है। फिर लोग यहाँ पर कैसा पानी पीते हैं? वो यहाँ से जो है या तो दूर से सप्लाई होता है, या जो है एक आगे कैनल है वहाँ से सप्लाई होता है। वहाँ पानी ठीक है, क्योंकि वो कैनल जो है यमुना नदी से निकलती है। राइट। तो ये जो किला है वो बनाया बादशाह अकबर ने, ये सीकरी है होने की खुशी में। ये सीकरी है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे सीकरी, इसके बाद आगे चलेंगे फतेहपुर। ठीक है। तो देखिए इधर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दीवान खाने आम, दीवाने आम बोले तो कोर्ट ऑफ पब्लिक ऑडियंस, लाइक जनता दरबार। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, देखिए जहाँ पत्थर की जालियां लगी हुई हैं बीच में, तो उसके बीच में बादशाह अकबर बैठते थे और यहाँ बैठ करके अकबर लोगों की फरियादें सुना करते थे। आम जनता की जो प्रॉब्लम्स होती थी उन्हें जस्टिफाई करते थे। यहाँ बीच में ग्राउंड में आम जनता बैठती थी और चारों तरफ ये जो कॉरिडोर देख रहे हैं इसके अंदर इंपोर्टेंट पीपल, सीनियर सिटीजन्स लोग। ठीक है। आइए। ਉਹ जी ਆਪਾਂ सीकरी ਦੇ ਵਿੱਚ एंटर कर गए हैं। ये सीकरी देखिए सामने जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, इसको बोला जाता है द प्लेस ऑफ तुलादान। तुलादान करने की जगह। तुलादान समझते हैं आप लोग? वो अपने आप को वेट करता था ना, वो अपने आप को वेट नहीं करता था। महारानी जोधा जो प्रिंस था सलीम, उसको वेट करती थी। उसके बराबर का सोना तोल करके उसके हर बर्थडे पर गरीब लोगों में बांटा करती थी। क्योंकि प्रिंस सलीम जो कि काफ़ी विशेष के बाद पैदा हुआ था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसके बराबर का सोना तोल करके गरीब लोगों में बांटती थी।
तो ये जो ट्रेडिशन है वो आज भी फॉलो होता है। अभी जब हम जाएंगे चिश्ती साहब की दरगाह पर फतेहपुर वाले पार्ट में, तो वहाँ बड़े बड़े VIPs, पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, कॉमन पीपल्स वहाँ आते हैं अपनी विशेस करने के लिए, अपनी मन्नतें करने के लिए। और जब विश फुलफिल हो जाती है तो यही ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। बट इतना आज चेंज है कि सोना नहीं बांटते हैं। तो किंग्स लोग थे तो वो सोना बांटते थे, लेकिन आज के जो लोग हैं वो गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं या फूड ग्रेन्स डोनेट करते हैं या कपड़े डोनेट करते हैं, जैसा कैपेबिलिटी। So if you want to make any wish, so please do it. I hope your wish definitely come true. बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप भी अपना कोई विश करना सारा सोना तो अंग्रेज ले गए इथों, तो वो तो बहुत बाद की बात है। अंग्रेज तो काफी पीछे आए। बादशाह अकबर तो आज से 450 साल पहले की बात है। नहीं सोना ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਮੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੋਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ सारा कुछ। बिल्कुल, वो अब देखिए वो बाद की पहले की बात है। अभी हमें आज का जो है उसके तरीके से चलना है। तो अभी हम आगे चलेंगे, आ जाइए। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ 1 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਬਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਅੰਦਰ। बाहर से देखने में डबल स्टोरी, लेकिन अंदर से सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। ऊपर ये प्लेटफॉर्म जो देख रहे हैं आप, हाँ। सेंट्रल पिलर के ऊपर, हाँ। यहाँ बीच में बादशाह अकबर बैठते थे। अच्छा। चारों तरफ कॉरिडोर्स के अंदर उनके 9 मिनिस्टर, जिन्हें नवरत्न बोला जाता है, ठीक है, 9 जेम्स, वो लोग बैठते थे और यहाँ बैठ करके अपना प्राइवेट मीटिंग्स किया था। अच्छा, इसीलिए इसको बोला जाता है दीवाने खास। ओके। सामने जो दरवाजा होता है उसके अंदर से सीढ़ियाँ हैं वहाँ से ऊपर जाने के लिए। हम चढ़ नहीं सकते ऊपर? ओके। देखिए आपने पढ़ा होगा अकबर होना जो लिबरल किंग, वो चाहते थे कि सभी धर्मों के जो लोग हैं वो साथ मिलकर के रहें। अकबर ने उस जमाने में एक नया धर्म शुरू किया, दीन ए इलाही। आपने पढ़ा होगा दीन मीन्स धर्म और इलाही मीन्स गॉड, इन विच वन अल्लाह, वन गॉड कंसीडर ओनली सुपर पावर अलमाइटी। केवल जिसमें एक ही जो है महान शक्ति को माना गया, सुपर पावर को। ठीक है। तो दीन इलाही के जो एविडेंस हैं वो आप इस सेंट्रल पिलर पर देख सकते हैं। उस जमाने के सभी मुख्य धर्मों का जो आर्किटेक्चर है, डिजाइन है, वो इस सेंट्रल पिलर के ऊपर दिया गया है, क्योंकि बादशाह अकबर सभी धर्मों को मानते थे। अभी आप यहाँ देखेंगे, देखिए प्लेटफॉर्म के जस्ट नीचे जो आप पहला वाला जो डिजाइन देख रहे हैं, ये हिंदू आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ओके। क्योंकि देखिए वहाँ जो टर्न कर रहा है तो लोटस फ्लावर्स के डिजाइन बने हुए हैं। सेकंड वन जैसे ये घूम रहा है ऐसे, यहाँ देखिए 3 फ्लावर्स हैं, लोटस फ्लावर्स। ये हिंदू धर्म को डिनोट कर। ये सेकंड वाला जैन आर्किटेक्चर। हाँ। एंड देन जिगजैग लाइन। ओके। नीचे हाँ। पर्सियन। ठीक है। एंड देन स्मॉल बॉर्डर लाइक अ गेट, क्रिश्चियन। एंड देन सिमेट्रिक वर्क ऑफ फ्लावर्स, बुद्धिस्ट। And then work like a crown, Muslim, Islamic. And at the bottom, they are the signature sign of Mughals called Umar Khayyam. Mughal. Right. Okay. अच्छा। ओरिजिनल देते हैं ये सेंटर पॉइंट ऑफ फोटोग्राफ। आप अगर चाहें तो ये ऑफिशियल फोटोग्राफर होते हैं यहाँ पर। 2-3 फैमिली फोटो निकालेंगे। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਆ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। सबसे नीचे 84, उसके बाद 56, 20, 12 and 4 पंचमहल। तो पंचमहल या हवा महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पानी की कमी थी। तो बादशाह अकबर ने किले के पीछे एक झील बनवाई थी जिसको मोती झील बोला जाता था। और मोती झील से आने वाली जो ठंडी हवा थी वो इस पैलेस के अंदर से गुजरती थी। पूरा ओपन था, क्रॉस वेंटिलेशन था, इसलिए इसको एज अ हवा महल यूज़ किया जाता था। इधर ये बीच में जो प्लेटफॉर्म देखा है वहाँ तानसेन बैठते थे और वहाँ बैठ करके अपना गाना बजाना किया करते थे। उसके पीछे जो डबल स्टोरी कॉरिडोर आप देख रहे हैं वहाँ से अकबर और उनके कॉर्टियर्स लोग बैठ करके ये परफॉर्म सुनते थे। सामने इधर ये पीछे डबल स्टोरी जो बिल्डिंग बनी है ना पिलर्स वाला, अच्छा, तो वहाँ से बैठ करके वो ये प्रोग्राम देखा करते थे और उनका जो म्यूजिक प्रोग्राम हुआ करता था। उस टाइम के जो है बहुत ही जो है महान संगीतकार थे, जिन्हें एक बहुत ही उच्च श्रेणी के जो है संगीतकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग म्यूजिक कंपोज किए थे। जैसे अगर आप देखेंगे दीप राग, वो बताते हैं कि अगर वो दीप राग गाते थे तो दीपक जल जाया करते थे। राग मल्हार, मेघ मल्हार बोला जाता है, तो मेघ मल्हार अलग अगर गाया करते थे तो बारिश हो जाती थी, ऐसा बताया जाता है। तो वो
बहुत ही मतलब ग्रेट म्यूजिशियन थे। तो इधर आप देख रहे हैं इस किले का सबसे छोटा लेकिन सबसे सुंदर पैलेस, टर्की सुल्ताना हाउस। टर्की सुल्ताना फर्स्ट वाइफ ऑफ द किंग, मुस्लिम वाइफ बिलोंग टू टर्की, नेम वाज रुकैया बेगम। ओके। ये रुकैया बेगम का कमरा था। इस पे कार्विंग का जो वर्क है वो लाइक इम्पॉसिबल ऑफ दैट टाइम, क्योंकि उस जमाने में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीन्स नहीं थी, कंप्लीटली हैंडमेड है, पूरा हाथ से कारीगरी की गई है। अंदर आप सीलिंग पे देखेंगे कितना सुंदर वर्क किया गया है स्टार शिप्स में। मरियम्स पैलेस, मरियम वाज द सेकंड वाइफ ऑफ किंग, क्रिश्चियन वाइफ। तो उन्हें पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। तो ये पूरा पैलेस जो है कलरफुल हुआ करता था, मल्टी कलर पेंटेड होता था। अच्छा। जैसे देखिए कुछ पेंटिंग्स अभी भी आप देख रहे होंगे, वहाँ दीवार पे पीछे आपको दरवाजे के ऊपर एक एलिफेंट बना हुआ दिखेगा, उसके नीचे कुछ हॉर्सेस वगैरह बने हैं। तो ये पूरा कलरफुल होता था, इसलिए इसको सुनहरा महल या गोल्डन पैलेस भी अच्छा बोला जाता है। इधर आप ये जो रूम देख रहे हैं, ये महारानी जोधाबाई जो कि अकबर की तीसरी रानी, हिंदू रानी, उनका किचन हुआ करता था, रसोई थी, वेज रसोई, because she was a vegetarian, because she was Hindu. So veg food cooked inside this building, and you see that hole work like a chimney, so let's smoke out. बाहर निकालने के लिए। और इधर आप ये जो डिजाइन देख रहे हैं ना, ये 156 डिफरेंट डिजाइन ऑफ इयरिंग्स, 156 तरीके के राजस्थानी झुमके के डिजाइन है। क्योंकि उन्हें झुमके बहुत पसंद थे, राजस्थान से थी, झुमके पसंद थे। और जब उनकी दासियां लोग खाना बनाती थी तो बताया जाता है कि जब उन्हें खाना पसंद आता था तो वो दासियों को झुमके गिफ्ट किया करती थी। और पीछे वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं वो नॉनवेज किचन हुआ करता था। आइए, महारानी जोधाबाई की हवेली, इधर सामने जो आप देख रहे हैं पूरा, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा पैलेस है जोधाबाई द पैलेस। जोधाबाई द पैलेस। खड़क सिंह से खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियों, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह से खड़कने से खड़कती है ये आ गया जी जोधाबाई दा पैलेस, सब नंबर बड़ा। इसको जो है राजपूत हवेली के तरीके से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि महारानी जोधा जो कि राजपूत थी। तो देखिए सामने जो बालकनी आप देख रहे हैं, इन्हें झरोखे बोला जाता है। टर्न स्टाइल गेट इसके अंदर रखे गए हैं। आओ जोधाबाई। खड़क सिंह से खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कती हैं। टर्न स्टाइल गेट इसमें रखे गए हैं जिससे कि बाहर से निकलने वाला कोई भी जेंट्स डायरेक्टली इसके अंदर ना देख सके, क्योंकि ये जो है मेन लेडीज पैलेस हुआ करता था, हरम जिसको बोला जाता है। यू नो टर्न स्टाइल गेट, टर्न स्टाइल टू डिफरेंट एंट्रेंस व्हिच आर नॉट इन सेम डायरेक्शंस। इस वजह से सामने आप दरवाजा देख रहे हैं। यस यस, फॉर द रीजन ऑफ सिक्योरिटी, for the reason of security, and no one could see directly inside this right, palace. right. Because this was the main haram, main ladies palace. So if you see directly, so you can't see directly inside. Yes yes. आपको सामने वहाँ दीवार दिखाई देगी। जब आप सेकंड वाले एंट्रेंस पे साइड से जाएंगे तब आप अंदर पहुंचेंगे, तब आपको अंदर का नजारा। Like if anyone want to enter this building and he is on horse, that horse cannot go inside on speed. नो, हॉर्स तो जाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि यहाँ नहीं, जैसे पहले उन्होंने बताया था ना, वो फोर्ट में ऐसे दरवाजे बने हुए थे ना, वो देखिए वो वहाँ से वो सीधा फिर ऐसे जो फर्स्ट वाले जो गेट है आगरा किला के अंदर, वो तो हॉर्सेस के जाने के लिए ही है। बट ये तो एक किले का इंटीरियर पार्ट है, क्योंकि ये महारानी का पैलेस था। लेकिन ये इसका जो पर्पस था टर्न स्टाइल का, कि सामने से अभी जैसे यहाँ से कोई जेंट्स निकल रहा है तो उसको डायरेक्टली अंदर, जैसे अपना लेडीज का कमरा है वो साइड में होता है ना, बिल्कुल घर में पीछे, तो बाहर से निकलने वाले जेंट्स लोग को अंदर दिखाई ना दे। के लिए अकबर की तीसरी रानी। इधर राइट में आप जो देख रहे हैं, दिस वाज द समर पैलेस, एंड लेफ्ट में जो देख रहे हैं दैट वाज द विंटर पैलेस। इसका क्या डिफरेंस है समर और विंटर का? आइए आपको जो डिफरेंस भी बता देते हैं। दोनों देखने में सेम है, बट यू कैन सी द डिफरेंस। You see that stone ventilations on the first floor. वहाँ पत्थर की जालियाँ दिखाई दे रही हैं पीछे। तो पीछे मोती झील होती थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो वहाँ से ठंडी हवा इधर आती थी। साइंटिफिक रीजन भी होता है, नॉर्थ टू साउथ हवाएं चलती हैं, तो इसके अंदर से हवा आती थी, इसलिए इसको एज अ समर पैलेस यूज किया जाता था। और सुबह ईस्ट से जब सनराइज होता है तो सनलाइट सबसे पहले यहाँ आती थी। इसके अंदर कोई विंडो वेंटिलेशन नहीं था, और इसलिए इसको एज अ विंटर पैलेस यूज किया जाता था।
महारानी जोधा जो कि हिंदू थी, शी वॉज हिंदू, नेवर चेंज रिलीजन, शी वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की भक्त थी। तो ये पूरा पार्ट जो उनका मंदिर हुआ करता था, इसके अंदर भगवान कृष्ण का विग्रह होता था, यहाँ बैठ करके अपनी पूजा करती थी। और इधर ये जो पॉट आप देख रहे हैं, इसके अंदर तुलसी का पौधा होता था, जो कि आज भी हिंदू घरों में होता है। बाकी का चारों तरफ का एरिया जो देख रहे हैं, इसके अंदर उनकी जो 64 लेडी सर्वेंट्स थी, 64 दासियाँ, जो कि वो अपने मायके से साथ लेकर के आई थी, हिंदू दासियाँ, वो सब लोग उनके साथ यहाँ रहा करती थी। आइए ਆ ਵੇਖੋ ਨਾਬੂ ਮੇਰੇ ਘੜੇੜੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿਕਰੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਬੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਕਰੀ ਕਿਲੇ ਦੀ, ਸਿਕਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।